Hello students and welcome to Fantastic Friday. What is this Fantastic Friday all about? हम लोग इस फ्राइडे लेक्चर सीरीज के अंदर बात करेंगे. We will talk about previous year question papers as far as CAT is concerned, and when I'm talking about previous year questions, I'll talk about reading comprehension, the kind of passages जो reading comprehension के अंदर आ चुके हैं, and with verbal my colleagues will also talk about the things. I mean, if I talk about past year paper, good questions as far as good sets in logical reasoning, data interpretation, and some of the interesting questions in quantitative aptitude as well. We'll talk about various techniques, we'll talk about logic, we'll talk about all those things in this Fantastic Friday. Now when I'm talking about verbal, right, because that's what I am supposed to do today. When I'm talking about verbal, मैंने स्टूडेंट्स को कई बार स्ट्रगल होते हुए देखा है that sir, in last mock whatever I have given, I have got 85 percentile or 80 percentile. I don't know how in the next mock it's now 30 percentile. From 80 to 30, then moving ahead to 40, then coming to again 75, then coming back to 15 percentile, right? And then sometimes reaching to again 75, 78. यहां पर अगर आप बात देखेंगे, मैंने 99 परसेंटाइल की बात नहीं करी या मैंने 90 परसेंटाइल की बात नहीं करी, because the reason is very simple. When you are talking about 99 percentile or 95 percentile or a 90 percentile, which means your logic is clear as far as solving reading comprehension or parajumbles or odd sentence, right? अगर आप उस percentile को regularly hit कर रहे हो. But when you are hovering around, let's say between 20 to 75 odd or 80 odd percentile, which means there is something wrong with the logic. या तो when we say that it is basically a तुक्का, maybe I don't know the exact logic. Sometimes आंसर सही हो जाते हैं, sometimes नहीं होते हैं. मैं दो ऑप्शंस के अंदर कंफ्यूज हो जाता हूं. I end up marking the wrong one. और या फिर हम बात करते हैं इस बार ऑप्शंस बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग थे, which means there is something wrong with the logic. And in this Fantastic Friday series, as far as verbal is concerned, I'll be talking about to develop the logic. Yes, हम लॉजिक की बात करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर. हम आज लॉजिक की बात करेंगे वर्बल के अंदर कि हाउ टू अप्लाई दैट लॉजिक. I'll be talking about how to attempt the passages. मुझे passages attempt करते वक्त क्या चीजें देखनी चाहिए, या फिर मुझे पैराजम्बल्स attempt करते वक्त क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए. मेरे वो क्या चीजें हैं, वो क्या ऑप्शंस हैं जो बेसिकली पेपर सेटर ने मेरे लिए ट्रैप की तरह बिछा रखे हैं. आई शुड बी अवेयर फॉर ऑफ ऑल दीज ट्रैप्स. what should I retain, what should I consider, how should I get that main idea. That's what I'll be talking about in this Fantastic Friday series, and today we will be solving CAT 2019 slot 1. Yes, आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 2019 का स्लॉट 1 पेपर, जिसके अंदर मैं सारे पैसेजेस, मतलब 24 क्वेश्चंस फॉर्मेट पे ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस थे, जिसके अंदर 5 पैसेजेस थे. और इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपसे बात करूंगा उन 5 पैसेजेस के बारे में, उन क्वेश्चंस के बारे में. Why I have taken 2019 slot 1? Because it was nightmare for some of the students. The paper was really tough. Students actually struggled. Some of the good students who were doing good in their mocks before going to this CAT 2019, they also struggle in few of the passages. वो पैसेजेस कौन से थे, वो क्वेश्चंस कौन से थे, हमें कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए थे, नहीं करने चाहिए थे, इन सब पे मैं बात करने वाला हूं. सो लेट्स टॉक अबाउट एंड लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग 2019 slot 1 paper with me Prashant, right? Okay, let's start this passage 1. और मैं साथ में आपके साथ पैसेज को पढ़ूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा. एंड यू हैव टू मेक नोट्स वेयरएवर यू वांट. आपको जहां जहां लग रहा है कि मुझे वर्ड के मीनिंग नहीं पता है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दिस 2019 slot 1 पेपर was a real time example. जो स्टूडेंट्स वोकैबुलरी को पे ध्यान नहीं देते, और मैं हमेशा बोलता हूं वोकैबुलरी इज लाइक ऑक्सीजन टू योर लैंग्वेज सेक्शन, जो लोग इस पे ध्यान नहीं देते उनके लिए ये एक रियल लाइफ एग्जांपल था कि अगर वोकैबुलरी नहीं आएगी तो आपको कोई भी पैसेज नहीं आ सकता. आई एम गिविंग यू, considering it is a actual CAT paper, 45 minutes on reading comprehension. You have 5 passages. I am giving you here 7 minutes to read the passage, and then I will solve this passage with you. Your time starts now.
ओके, आई एम श्योर यू माइट हैव रेड द पैसेज, और वो कितना समझ में आया है, क्या आया है, हम लोग इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं. लेट्स स्टार्ट. As defined by the geographer, by the way, this passage was about, topophilia, right? Now the point is, the moment we are talking about topophilia, if someone is well averse with this word, वहीं पर आधी समस्या दूर हो जाती है. Half of the problem is solved if you know the meaning of the word topophilia or topophobia for that matter, because somehow you get connected. हालांकि they have explained it very properly, but still, right? This is, when you go to the internet, this is the particular study which is taken up about topophilia and how they have related the sense of belonging to the place with the cultural differences, or with how subjective it is. The word topophilia or topophobia, how subjective it is. And then at the end, author is talking about that how the continuous obsession towards the place can eventually can eventually make us get into topophobia kind of a thing. That's what the passage was talking about. Let's understand. As defined by the geographer Yi Wu Tuan, topophilia is the effective bond between people and place. Now, what is this topophilia is all about? So I'm sure by this time, when you are preparing for your CAT examination, you might have worked hard on your vocabulary. So when I'm talking about the word topophilia, it is coming from the word phil, phil, which means love. It's coming from the word phil, which means love, and topophilia is nothing but love for place. Love for place. आपको कोई भी ऐसी जगह, उसके लिए एक ऑब्सेशन होना, उसके लिए एक प्यार होना, उसके लिए एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होना, इज नथिंग बट टोपोफिलिया. सो वो क्या बोलना चाह रहे हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफाइन किया पहले टोपोफिलिया को, इट्स द बॉन्ड बिटवीन अ पीपल एंड प्लेस टू, राइट. His 1974 book set forth a wide-ranging exploration of how the emotive ties with the material environment vary greatly from person to person. समझने की कोशिश करना, आपके जो इमोशनल टाइज हैं एनवायरनमेंट के साथ, माई टाई लेट्स से विद माई एल्मा मैटर, or let's say MS Dhoni emotional ties with, let's say, the sports he played in his career, cricket, and the, let's say, emotional ties of Sachin Tendulkar with cricket. For MS Dhoni, Sachin Tendulkar, Virat Kohli, these ties will be different, right? The sense of belonging to a place, to that cricket stadium will be different. Probably the sense of ties with a test match or the kind of match he's playing will be different. So what they are saying is the emotive ties with the material environment vary greatly from person to person. Why? Let's understand. And in intensity, so एक तो वेरी करता है, मतलब विराट कोहली के लिए शायद ज्यादा होगा या सचिन तेंदुलकर के लिए कम होगा. एंड इंटेंसिटी, उसकी जो इंटेंसिटी भी होगी वो भी बहुत ज्यादा वेरी करेगी. सबटलिटी एंड मोड ऑफ एक्सप्रेशन, वो कितना ज्यादा उसको एक्सप्रेस कर रहा है, ये सारी चीजें जो हैं ये वेरी करेंगी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वंस डेप्थ of response to the environment include. अब क्या क्या फैक्टर इंक्लूड करते हैं जो हम बात कर रहे हैं, that it will vary greatly, बहुत बड़ी मात्रा के अंदर ये वेरी करेगा. और अब अगर हम जब वेरी की बात कर रहे हैं, किस किस पे डिपेंड करेगा, एक कि हमारा कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, हम किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं. जेंडर, it will vary for male and female in a different way. Race, it will vary from country to country in a different way. Historical circumstances, your upbringing for that matter, and what kind of things which you are coming from. And Tuan, which means the author, the researcher, he also argued that there is a biological and sensory element also involved. So ये सारे elements हैं जिसकी वजह से ये जो हमारा emotional connect है प्लेस के साथ, टोपोफिलिया जो है ये बेसिकली वेरी करेगा. तो क्या क्या फैक्टर्स थे, मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमें याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी जब हम रीड करेंगे. हमारे पास जो फैक्टर थे वो कल्चरल बैकग्राउंड 1, we were talking about gender which is 2, we are talking about race which is 3, we are talking about historical circumstances, biological and sensory relations 2. So these are the 6 factors we are talking about. Topophilia might not be the strongest of human emotions. वो बोल रहा है कि हमारे पास काफी तरीके के इमोशंस हैं, राइट. वी हैव इमोशन टू अवर फैमिली, टू अवर चिल्ड्रन,
probably to the in the workplace we have different kind of emotions और उसके अंदर टोपोफिलिया स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होगा, might not, शायद इतना स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है. Indeed many people feel utterly indifferent towards the environment that shape their lives. और इसमें से काफी लोग ऐसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उस एनवायरमेंट्स ने जिनसे उनकी लाइफ शेप हुई है. बट देयर इज अ प्रॉब्लम, व्हेन एक्टिवेटेड, जब इस इमोशन को एक्टिवेट किया जाए, it has the power to elevate a place to become the carrier of emotionally charged events to be perceived as a symbol. वो क्या बोल रहा है, शायद फर्क नहीं पड़ता बट अगर किसी को इमोशनली चार्ज किया जाए, हम बात करते हैं हमारे नॉस्टैल्जिक डेज की, हम बात करते हैं पुराने दिनों की, पुराने कॉलेज की और व्हाटसोएवर, जब इसको एक्टिवेट कर दिया, इस टोपोफिलिया के अंदर पावर है, या तो वो जो प्लेस है उसको इतना उसकी आंखों में इमोशनली अगर मेरे को एलिवेट कर दिया तो वो जगह मेरे आंखों के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर इतना एलिवेट, इतना ऊपर उठ जाएगी और कई बार वो एक सिंबल की तरह भी महसूस होगा. सो दैट्स व्हाट दिस पैसेज, द पैराग्राफ 1 इज इन द पैसेज 1, paragraph 1 is talking about that what topophilia is, on what all things it depends, and basically how, maybe ज्यादा इतना इंटेंसिटी नहीं है इसकी, बट अगर इसको एक्टिवेट कर दिया जाए तो ये क्या क्या कर सकता है, how strong it is. Aesthetic appreciation. Now when I'm talking about aesthetic appreciation, we are talking about, मतलब जो चीज अच्छी लगती है उसको हम एस्थेटिक यूज करते हैं, थिंग्स व्हिच आर गुड, जैसे हम लोग अच्छे एम्बियंस की बात करते हैं, सो दैट इज एस्थेटिक सेंस. घर के अंदर हम लोग कुछ साज सजावट करते हैं. सो क्या बोल रहा है, एस्थेटिक एप्रिसिएशन इज वन वे, ये एक तरीके का है जिस तरीके से लोग एनवायरनमेंट को रेस्पॉन्ड करते हैं. व्हिच मींस अगर लेट्स से इस स्टूडियो का एस्थेटिक सेंस अच्छा है और फैकल्टी कमिंग ओवर देयर विल रिएक्ट डिफरेंटली, एंड अगर इफेक्ट अच्छा नहीं है देन अ फैकल्टी हु इज टीचिंग मे एक्ट डिफरेंटली, मे, राइट. सो द पॉइंट इज इट्स वन वे, and that's very obvious when we go to a restaurant, when we go to a college, when we go to the university. It's one way how people respond. A brilliantly colored rainbow, so अब उसका एग्जांपल दे रहा है, a brilliantly colored rainbow after gloomy afternoon showers. So shower के अंदर gloomy, बड़े अजीब से आफ्टरनून शावर के अंदर एकदम से जब रेनबो आ जाना, a busy street, एक बिजी स्ट्रीट है जो अलाइव होती है ह्यूमन इंटरेक्शन से. One might experience the beauty of such landscape that had seemed quite ordinary only moment before, or that are being newly discovered. So after a gloomy shower, एकदम से रेनबो का आ जाना, एकदम से बिजी स्ट्रीट के अंदर ह्यूमन इंटरेक्शन आ जाना, सो ये एकदम से हमारे को बताता है, वो क्या बोल रहा है, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर एक्सपीरियंसिंग, और दैट्स वेयर दे आर टॉकिंग अबाउट एस्थेटिक कंसिडरेशन. नाउ अब ये सारी चीजें वो बोल रहा है, this is quite the opposite of a second topophilic bond, namely that of the acquired taste. अभी तक हम जो बात कर रहे हैं एस्थेटिक कंसिडरेशन का टोपोफिलिक फॉर्म्स के अंदर, और दूसरा बात कर रहे हैं हम जो हमने ओवर द टाइम एक्वायर किया है, राइट. द सेकंड टोपोफिलिक बॉन्ड, और ये उससे एग्जैक्टली अपोजिट है सेकंड वाला, वो क्या बोल रहा है, दैट वी एक्वायर्ड, नेमली दैट ऑफ द एक्वायर्ड टेस्ट फॉर द सर्टेन लैंडस्केप एंड प्लेसेस दैट वन नोज वेल. अब एक चीज ऐसा है जो मुझे अच्छा लगा, मैं उसकी तरफ इमोशनली अलग तरीके से कनेक्ट हो रहा हूं. एक जिस चीज को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं उसकी तरफ. सो फॉर एग्जांपल, लेट्स से you guys let's say went for a vacation, let's say to Europe, right. आप स्विट्जरलैंड गए, स्विट्जरलैंड में आप जाएंगे, वो एक एस्थेटिक कंसिडरेशन है, वहां पर आपका इमोशनली कनेक्ट होना उस प्लेस के अंदर वो एस्थेटिक सेंस के द्वारा है. एंड द मोमेंट लेट्स से यू केम बैक टू इंडिया, और इंडिया आते ही लेट्स से हम एक हमारे गांव के अंदर चले गए जहां पर एकदम मतलब we are not talking about even the cars and all, we are talking about typically bucolic kind of a structure, village kind of a structure. वहां पर आ गए बिकॉज वो विलेज को मैं जानता हूं, मैं वहां बड़ा हुआ हूं, वहां से मेरा कनेक्ट अलग हो जाएगा, राइट. सो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इज that of the acquired taste for the certain landscape and places that one knows well. When a place is home, or when a space has become the locus of memories, as I said, the means of gaining a livelihood. ये प्लेस जहां शायद मैं बड़ा हुआ हूं, या जहां से मुझे लाइवलीहुड मिलता है, जहां से मैं अपना रोटी घर पानी चलाता हूं, वहां मेरा एक अट्रैक्शन अलग होगा. इट फ्रीक्वेंटली इवोक्स अ डीपर सेट ऑफ अटैचमेंट, और ये शायद बहुत ही डीपर सेट ऑफ अटैचमेंट इवोक करेंगे
एज कंपेयर टू एस्थेटिक। चाहे मैं कितना स्विट्जरलैंड जाके आ जाऊं, आके तो भैया हरियाणा में गांव ही अच्छा लागे से। हाँ, सो a third response to the environment also depend on the human senses, and the third sense they are talking about is human senses, maybe tactile and olfactory. Tactile in the sense we are talking, we can touch, tangible effect. Olfactory, something related to senses, right? Namely a delight, the feel and the smell of air, water on the earth. So these are the three things we are talking about a sense of belonging, a topophilia. We are talking about, first of all, aesthetic sense, then we talked about sense of belonging, then third we were talking about the sensory attachment, right? Let's move further. Topophilia and its very close conceptual twin, sense of place. Again, sense of place, when what we talk about is an experience that however elusive. अब ये टोपोफिलिया वो एक्सपीरियंस है, कितना भी एल्यूसिव हो जाए, एल्यूसिव का मतलब कितना भी आपसे भाग जाए, कितना भी जगह वो आपसे दूर हो जाए, कितनी भी आप चाहे कोशिश कर लें, हैज इंस्पायर्ड रीसेंट आर्किटेक्ट एंड प्लानर, कितना भी आप दूर हो जाए इस चीज से, बट अभी रीसेंट जो आर्किटेक्ट एंड प्लानर है, दीज बेसिकली अटैचमेंट हैव इंस्पायर्ड देम। इन व्हाट सेंस, लेट्स अंडरस्टैंड। Most notably the new urbanism, right? ये new kind of जो urbanism आ रहा है, नए cities वगैरह develop हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? They are seeking to counter the perceived placelessness of modern suburbs. ये try कर रहे हैं जो modern suburbs जो हैं उसको counter करने का जो हम शायद एक level पे भूल के आ गए हैं, एंड जो डिक्लाइन हो रही हैं सेंट्रल सिटीज। नाउ व्हाट आर दी सेंट्रल सिटीज, हम बात कर रहे हैं जहां पर एक टाइम में ट्रेड होता था, जो एकदम ट्रेड का स्ट्रक्चर होता था, एक जगह जहां लोग इकट्ठा होते थे सोशलाइजिंग करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, जहां मेले टाइप होते थे। तो वो क्या बोल रहा है कि न्यू अर्बनिज्म ये काउंटर कर रहा है परसीव्ड प्लेसलेसनेस ऑफ मॉडर्न सबअर्ब्स एंड द डिक्लाइन ऑफ सेंट्रल सिटीज। किस वजह से? थ्रू नियो ट्रेडिशनल डिजाइन। ये नियो नए तरीके के ट्रेडिशनल डिजाइन ला रहा है। ऑल्दो मोटिवेटेड बाय गुड इंटेंशन, इन लोगों का इंटेंशन अच्छा है, सच अटेम्प्ट्स टू क्रिएट प्लेसेस रिच इन मीनिंग आर परहैप्स बाउंड टू डिसअपॉइंट। इन लोगों का इंटेंशन बहुत अच्छा है, बट कितनी भी कोशिश कर रहे हैं ये हमें डिसअपॉइंट ही कर रहे हैं। As to are noted, purely aesthetic responses offer are suddenly revealed, but their intensity rarely is long lasting. They are good in aesthetic sense, but their intensity is not long lasting, because intensity किसकी long lasting होगी? जो कि जहां से मैं deep rooted हूं, a sense of belonging. When we are talking about the acquired taste we were talking about, right? Topophilia is difficult to design. A sense attachment to the place is very difficult to design. For and impossible to quantify. It's very impossible to quantify it. It's basically the feeling. You can't quantify that. And its most articulate interpreters have been self-reflective philosophers. और जो लोग इसको इंटरप्रेट कर पा रहे हैं सेंस ऑफ बिलोंगिंग को, वो क्या हैं? दे आर सेल्फ रिफ्लेक्टिव फिलोसफर्स, right? They are not normal men. They may be philosophers. That's how they can explain it. They can explain the feeling, right? Such as, now they are giving the example, such as Henry David evoking a marvelously integrated sense of place at Walden Pond. What he did, Henry David, he explained his attachment with Walden Pond in United States, right? How attached he is, right? And to on he himself describing his affinity for the desert, that how he liked the desert, he feel a sense of belonging there. Topophilia connotes a positive relationship, but now this is very important. वो बोल रहा है topophilia is showing a very positive connotation at this point of time, but there is a problem. What is that problem? The problem is it often is useful to explore the darker affiliations between people and place. Sometimes it also helps to explore the darker side, the darker affiliations between people and place, right? That's the negative side of it. Patriotism, for example. We talk about Desh Bhakti, patriotism, literally meaning the love of one terra patria or homeland.
होमलैंड के लिए प्यार has long been cultivated by governing elites for a range of nationalist project. How the governing elites जो हमें गवर्न कर रहे हैं वो किस तरीके से हमारा ये डार्क साइड, हमारा ये टोपोफिलिक जो अटैचमेंट है उसको नेगेटिव वे में यूज करते हैं, जहां पर वॉर प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है आम जनता को, एथनिक क्लीजनिंग, जिस तरीके से आप बोलते हैं कि आप बाकी के जीन्स को हटा दो, हिंदू तत्व की बात करो, सो किस तरीके से नेगेटिव तरीके से आता है, रेजिडेंट्स ऑफ अपस्केल रेजिडेंशियल डेवलपमेंट, और जो बड़े बड़े रेजिडेंशियल डेवलपमेंट के रेजिडेंट हैं, दे हैव डिस्क्लोज्ड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू मेंटेन देयर कम्युनिटी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, और वो ट्राई करते हैं इस तरीके से कि हम हमारी कम्युनिटी का आइडेंटिटी कैसे अलग कर सकते हैं। ऑफन किस तरीके से, बाय कास्टिंग देम इन सुपीरियर सोशल पोजीशन, अगेन ये भी क्या है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, अपने आप को दिखाते हैं वो बड़ी पोजीशन के अंदर है, टोपोफिलिया, एंड बाय रीइंफोर्सिंग क्लास, क्लास के बारे में बात करते हैं, टोपोफिलिया, एंड रेशियल डिफरेंसेस, टोपोफिलिया, एंड जस्ट एज अ बिलव्ड लैंडस्केप is suddenly revealed, so too many landscape of fear cast a dark shadow over a place that makes one feel a sense of dread or anxiety और टोपोफोबिया। और जब ये बहुत ज्यादा होने लग जाता है तो ये टोपोफिलिया, लव फॉर प्लेस, टोपोफोबिया में कन्वर्ट हो जाएगा, which means उसी जगह से डर लगने लगेगा, fear of place. So this was passage 1, my dear students, of CAT 2019 slot 1. Let's move to the questions now. Question 1 on your screen now. Okay, let's see. The word topophobia in the passage is used. देखो, अब यहां पर क्वेश्चन सॉल्विंग की बात आ रही है, हम लोगों ने ऑलरेडी पैसेज की बात कर चुके हैं। जब मैं क्वेश्चन सॉल्विंग की बात कर रहा हूं, we have to understand the idea of this session is not just to solve the passage as I mentioned during the starting of my session. It is to develop the logic. I will explain you why other options are not the answer, right? I'll explain you, आपको चारों के अंदर लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा, and in my live classes also when I interact with the students, because it is I think a monologue going on and you must be listening to my video, but when I talk with the students in the live classes, when I discuss with them, I basically try to evoke the response that why you have marked that particular option, because आप जब आंसर मार्क नहीं करेंगे, so live classes के अंदर I ensure that all my students should answer. Even one of them is not answering, that's too bad. And I basically ensure that I'll get in touch with that student over the phone probably after my class, because जब आप मार्क नहीं कर पाएंगे, चाहे वीडियो सेशन को भी सुन रहे हो, पॉज करके सॉल्व करो, अगर आप मार्क नहीं करोगे तो मेरे लॉजिक को नहीं समझ पाओगे, राइट? लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ड टोपोफिबिया इन द पैसेज इज यूज्ड। हम लोग टोपोफिबिया की बात कर रहे हैं, इस पैसेज में किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन मैं, अच्छा यहां पर मैं आपको कई कई टिप्स देता रहूंगा एज एंड व्हेन वी गो अलोंग द पैसेज। पहली टिप जो मेरी तरफ से आपको है कि जस्ट stick to the passage. Tip 1 is stick to the passage. Stick to the passage, no outside gyan. Stick to the passage, no outside gyan. So this is gyan number 1 by Prashant Sugan, PS. What is it? The word topophobia in the passage is used to represent a feeling of dread towards particular spaces and places. वो कह रहा है टोपोफोबिया पैसेज के अंदर किस तरीके से यूज किया गया है, रिप्रेजेंट अ फीलिंग ऑफ ड्रेड टुवर्ड्स पर्टिकुलर स्पेसेस एंड प्लेसेस। लास्ट लाइन एक बार देख लेते हैं, and just as a beloved landscape is suddenly revealed, so too many landscape of fear cast a dark shadow over a place that make one feel a sense of dread or anxiety, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं टोपोफोबिया। सो फर्स्ट इज और कैन बी माय राइट आंसर, राइट? मैं अभी मार्क इसको स्टार मार्क कर देता हूं, राइट? एंड वी विल गो फॉर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एज आई सेड द लॉजिक इज व्हाई अदर थ्री ऑप्शंस, हाउ आई कैन एलिमिनेट, राइट? वो मेरे ज्ञान नंबर 2 और भी आएंगे, टेंशन मत लेना। हाँ, to signify the fear of studying the complex discipline of topography. इस पूरी चीज के अंदर टोपोग्राफी की बात नहीं हो रखी है। अब ये टोपोग्राफी होता क्या है? टोपोग्राफी इज राइटिंग अबाउट द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। टॉप लेयर जो अर्थ होती है उसको हम लोग बोलते हैं टॉपोस्फियर, ये उसकी बात कर रहा है। सो ये
ऑप्शन मेरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं है। आप ऐसे ऐसे वर्ड्स को सर्कल करेंगे और इनको एलिमिनेट करेंगे। अगेन वोकैबुलरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपने इसको सर्कल किया, आपने हटा दिया। थर्ड ऑप्शन, एज अ मेटाफॉर। नाउ दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच। व्हाट इज अ मेटाफॉर? Right, so again we will talk about in the live classes the figure of speech. Metaphor is basically when you are relating some non-living thing with a living thing. When you are relating with anything with a living, आप किसी भी non-living thing को एक living characteristics दे रहे हैं, उसको हम metaphor बोलते हैं, right? So as a metaphor expressing the failure of the homeland to accommodate non-citizens. We were not talking about non-citizens. हम लोग नॉन सिटीजन्स की बात नहीं कर रहे थे। मेरे पूरे पैसेज के अंदर इसका जिक्र नहीं हो रखा था। एंड लास्ट, टू सिग्निफाई फीलिंग्स ऑफ फियर और एंजाइटी टुवर्ड्स टोपोफिलिक पीपल। अब ये क्या बोल रहा है? फीलिंग्स दिखाओ किसके लिए? टोपोफिलिक पीपल के लिए। अगेन कहीं पर भी ऐसा नहीं दे रखा था कि हम लोग फीलिंग्स दिखा रहे हैं, डर दिखा रहे हैं टोपोफिलिक लोगों के लिए। यहां पर प्लेस की बात हो रही थी, इसलिए मेरा सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन चला गया। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को हम लोग बोलेंगे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। अगर कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहा है वो दंडनीय अपराध है, और अगर कोई क्वेश्चन इसको गलत कर रहा है तो उसको सजाए मौत हो सकती है। हाँ, सो जोक्स अपार्ट, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से नहीं। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, राइट? विद दिस लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following statement if true? इन चारों स्टेटमेंट के अंदर अगर ये सारे सही होते, could be seen as not contradicting the required argument is the passage. इनमें से, so what this question is talking about, there are three questions, there are three options which are contradicting the passage. हमने पैसेज समझ लिया, इसमें तीन ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि पैसेज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, और एक है जो नहीं कर रहा। जो नहीं कर रहा है, am I right? Yes, जो नहीं कर रहा है हमें उसको मार्क करना है। लेट्स अंडरस्टैंड ऑप्शन नंबर 1। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवन फंडामेंटल रेस्पॉन्स टू अवर एनवायरमेंट इज अवर टैक्टाइल एंड ऑल्फैक्टरी रेस्पॉन्स। वो क्या बोल रहा है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल रेस्पॉन्स टू अवर एनवायरमेंट हमारा टैक्टाइल और ऑल्फैक्टरी रेस्पॉन्स है। ये ऑथर के पूरे आर्ग्यूमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, बिकॉज ऑथर ने आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या बोला था, मैं आपको साथ साथ में समझा भी रहा हूं। ऑथर ने आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या बोला था? हियर वी गो। ऑथर ने सबसे ज्यादा बोला था कि सेकंड टोपोफिलिक बैंड क्या है? एक्वायर्ड टेस्ट फॉर सर्टेन लैंडस्केप एंड प्लेसेस दैट वन नोज वेल। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच वाज द मेजर थिंग। This is the something which was the major thing they talked about कि हम लोग का मेजर क्या है? हमारा मेजर है कि हमारा सर्टेन लैंडस्केप और प्लेसेस की तरफ जो अट्रैक्शन है वो। और जब वो बोल रहा है our tactile and olfactory response, a third response to environment also depend on this. So point is, यहां पर बोल रहा है maybe, यहां पर बोल रहा है maybe tactile and olfactory, और यहां पर is दे रखा है। क्या डिफरेंस है सर? डिफरेंस है। मे बी का मतलब हो सकता है, इज का मतलब है। समझने की कोशिश करना। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पर मे बी दिया हुआ है और यहां पर इज बोल रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा। और ऐसे ऑप्शन को हम लोग बोलते हैं जाल में फंसाना, और ये बहुत ही एक्सट्रीम कैटेगरी होती है। ये एक्सट्रीम ऑप्शंस के अंदर कंसीडर करता हूं मैं। हमें जहां पर इज या विल दे रखा हो मे बी की जगह, उसको हटा देना। मेजर ऑफ द टाइम आप यहां फंसते हो, आप जो बोलते हैं ना दो ऑप्शन के अंदर आंसर कंफ्यूजिंग हो रहे हैं, मे बी की जगह इज या विल को आंसर मार्क करते हैं। ऑप्शन नंबर 2, सो मेरा फर्स्ट नहीं होगा। जनरली स्पीकिंग इन अ गिवन कल्चर द टाई ऑफ द पीपल टू देयर एनवायरमेंट वेरी लिटिल। उसने तो क्या बोला था? बहुत ज्यादा वेरी करता है। उसने क्या बोला था? बहुत ज्यादा वेरी करता है। वेयर इट इज है वेरी ग्रेटली, बहुत ज्यादा वेरी करता है, और यहां पर बोला है वेरी लिटिल। अगेन कॉन्ट्राडिक्टिंग। थर्ड, patriotism usually seen as a positive feeling is presented by the author as a darker form of topophilia. Now this is something not contradicting.
This is not contradicting. Patriotism usually seen as a positive feeling. Here we go. Where is this patriotism, uncle? Where is this patriotism? Let me see. Patriotism literally means the love of one territory or homeland has long been cultivated by governing elites for range of nationalist project. So it is love for one homeland. Patriotism usually seen as a positive feeling presented by the author in the darker form. उसने क्या बोला था? Excessive patriotism may lead to topophobia as well. So ये बिल्कुल contradict नहीं कर रहा है because ये बिल्कुल contradict नहीं कर रहा है because ये author के साथ में बात कर रहा है. So ये क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है? ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी आ सकता है. Which of the following option is strengthening the author argument? या देयर आर 3 ऑप्शन जो कि ऑथर के आर्ग्यूमेंट को वीक कर रहे हैं, एक नहीं कर रहा. ये किसी तरीके से भी पूछा जा सकता है. 4th ऑप्शन, न्यू अर्बनिज्म सक्सीडेड इन दोज डिजाइन्स वेयर आर्किटेक्ट कोलैबोरेटेड विद देयर क्लाइंट. अगेन which is contradicting. उन्होंने क्या बोला था कि उनका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट नहीं है. Then again we are talking about contradicting and the only option we are going ahead with option number 3. I am sure you guys are getting it after watching this video. My small request to you guys is please do share the feedback in whatever platform you are listening to this video. Will help us a lot, to improve ourselves better. और क्या-क्या चीजें इसके अंदर कर सकते हैं और आपको कहां-कहां कंफ्यूजन हो रहे हैं. We can talk about all those things as well. Let's go to question number 3. In the last paragraph, the author uses the example of resident of upscale residential development to illustrate what? जो लास्ट के अंदर उन्होंने एग्जांपल दिया है रेजिडेंट्स ऑफ अपस्केल रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स का, वो किस लिए, क्या रीजन था उसका करने का. लेट्स सी. इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनलिस्ट प्रोजेक्ट बाय सच एलिट्स टू प्रोड्यूस सेंस ऑफ ड्रेड और टोपोफोबिया. क्या बोल रहा है? Let's go here. Resident of upscale residential development have disclosed how important it is to maintain their community distinct identity by casting themselves as a super social position and by reinforcing class and racial difference. That's it. खत्म. अब यहां पर जब आप बात कर रहे हो, यहां पर आप जो बात कर रहे हो ये किसी और चीज की कर रहे हो. यहां आप बात कर रहे हो इससे ऊपर वाली लाइन की, यहां आप इससे बात कर रहे हो ऊपर वाली लाइन की. ये ऊपर वाली लाइन यहां पर खत्म हो चुकी है. प्लीज इस बात को ध्यान रखना. कई बार हम लोग इस चीज से कंफ्यूज हो जाते हैं. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, सो यू नीड टू बी वेरी श्योर बिकॉज ऑथर तुम्हारे से ज्यादा स्मार्ट है. समझना इस बात को. सो ऑथर ने इस पॉइंट को ऑलरेडी खत्म कर दिया था और उसे जान करके ऑप्शन आपके सामने रखा. ऑथर ने एलिट्स की बात यहां पर खत्म कर दी थी और यहां से वो एक नया कंसेप्ट लेके आया था. इसलिए दिस इज इन द कॉन्टेक्स्ट. ये एलियन ऑप्शन नहीं है, ये बाहर का ऑप्शन नहीं है, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू द क्वेश्चन. इट इज नॉट रिलेटेड टू द क्वेश्चन. मैं आपको सब ऑप्शंस के रीजन दे रहा हूं, आप रीजन देखिए, देखते रहिएगा. सोशल एक्सक्लूसिविज्म, क्या बोल रहे हैं? हमारी कास्ट, हमारा कल्चर, हमारा ग्रुप, हम जो इतने अच्छे लोग हैं. सो व्हाट इज दिस? एक्सक्लूसिविटी. We are different. We are exclusive. We are distinct. So social exclusivism practiced by such residents in order to enforce a sense of racial or class superiority. A fact-based question गलत नहीं होना चाहिए. ये पैसेजेस जो हैं, इस तरीके से पैसेजेस को हंट किया जाता है, इस तरीके के क्वेश्चंस को हंट किया जाता है. Manner in which environments are designed to minimize the social inclusive of their clientele. उनके क्लाइंटेल का एक्सक्लूजन कहीं पर भी बात नहीं हो रखी है. सेंसिटिव रेस्पॉन्स टू रेस एंड क्लास प्रॉब्लम. सो वो बोल रहा है उनका रेस्पॉन्स सेंसिटिव है. उनका रेस्पॉन्स सेंसिटिव है या नहीं है, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है. वो क्या बोल रहा था, ये किस लिए बोल रखा है? बेसिकली वो जो सोशली एक्सक्लूसिव रहना चाहते हैं उसके लिए. I hope you are getting it. With this, let's move to question number 4 and I hope कि जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा हूं, 4 बोल रहा हूं, आप इस वीडियो को पॉज कर रहे होंगे, आप खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे. मैं फिर बोल रहा हूं, मेरे वीडियो को सुनने से कुछ नहीं होगा. मैं 1 घंटा बोल के, 2 घंटा बोल के 5 पैसे सॉल्व कराने वाला हूं. सोचो, मैं 5 पैसे जो कि कैट के अंदर आपको
सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट के अंदर सॉल्व करना होगा। मैं उसके लिए शायद 2 से 2.5 घंटे लगाऊंगा। द आइडिया इज टू एक्सप्लेन यू द लॉजिक, और आप बीच में पॉज कर करके खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, और फिर मेरा जब लॉजिक समझेंगे, मैं गारंटी देता हूं, सी रीडिंग आपको करना है, ऑप्शन सॉल्व करना मेरा काम है, और मैं गारंटी देता हूं जब तक आप कैट के एग्जाम तक जाएंगे आपको चीजें बहुत ज्यादा दिमाग में घुस जाएंगी, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग, और मैं आने वाले टाइम में और भी बातें करूंगा कि ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है, कि क्या स्ट्रेटेजी है जो मैं यूज करता हूं, वो सारी चीजों में मैं बात करने वाला हूं। Which one of the following best capture the meaning of the statement? इस मीनिंग को बेस्ट कैप्चर कौन करता है? Topophilia is difficult to design for and impossible to quantify. इसको सिर्फ फिलोसफर ही कर सकते हैं। देखो मैं रिटेन करने की कोशिश कर रहा हूं, आपको रिटेन करना है, आपको चीजों को रिटेन करना है। कॉम्प्रिहेंशन तो है ही, मुझे रिटेंशन करना बहुत जरूरी है। नॉवल न्यूज़पेपर नहीं है, मुझे वापस पैसेज में बारी बारी आने की जरूरत नहीं है, मुझे दिमाग में बिठाना पड़ेगा। People response to their environment are usually subjective and so cannot be rendered in design. मेरा बिल्कुल आंसर हो सकता है, कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्वांटिफाई कैसे करोगे, फिलोसफर ही कर सकते हैं, ये मेरा शायद आंसर हो सकता है। सेकंड पे आता हूं, the deep economy of modern urbanization led to new urbanization integrate sense of place. अगेन वो क्या बोल रहा है, जो डीप एनोमी, जो प्लेस ऑफ chaosness है of modern urbanization, I don't know, it is leading to new urbanism integrate sense of place, I don't know। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ यहां पर ये पूछ रहा था कि मैं उसको क्वांटिफाई क्यों नहीं कर सकता। थर्ड, architect have to objectively quantify spaces, no, who said that? Passage is not talking that, sir, but architect तो ऐसा ही करेगा, बट हमें पैसेज के अंदर कोई लेना देना नहीं है। फोर्थ, philosophers architect are uniquely suited to develop topophilic design. They are suited for topophilic design. Philosophers, nowhere it was given, so hence option number 1 is the right answer. Clear? And with this, moving to the last question of the passage, question number 5, which of one of the following come closest in meaning to the author understanding of topophilia? Before going to the options, let's understand the logic. वो क्या बोल रहा है? Which one of the following comes closest in the meaning to author understanding of topophilia? Author का understanding topophilia के लिए क्या है? Author का understanding topophilia के लिए क्या है? Positive है या negative? Positive है। उन्होंने positive बात करी है, उन्होंने कहीं पर भी गलत नहीं बताया, बट उन्होंने ये बोला है too much topophilic can lead to too much love for the places, और जो लोग जिस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं, लोग जिस तरीके से यूज करते हैं, may lead to topophobia. Let's go and solve this. The tendency of many culture to represent their land as motherland or fatherland may be seen as an expression of their topophilia. बिल्कुल हो सकता है। ऑथर ने बोला है बिल्कुल कि भैया अगर हम लोग हमारे मदरलैंड फादरलैंड की बात कर रहे हैं, टोपोफिलिया हो सकता है। सेकंड, नोमैडिक सोसाइटी आर नोन टू हैव द लीस्ट एफिनिटी। सो जैसे ही मैं नोमैडिक सोसाइटी की बात कर रहा हूं, मैं इसको हटा दूंगा। नोमैडिक का मतलब क्या होता है? जो कि इधर उधर जाते रहते हैं, एक जगह पे टिकते नहीं है। पूरे पैसेज में नोमैडिक फैमिली के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ था, इसको पढ़ते ही मैं हटा दूंगा। थर्ड, फ्रेंच, मुझे नहीं पता सिर्फ फ्रेंच की बात कर रहे हैं। साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट मोस्ट क्रिएचर्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर ईदर बॉर्न विद और कल्टिवेट अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ टोपोग्राफी। अगेन यहां पर वर्ड आ गया टोपोग्राफी, अगेन हटा दूंगा। आई एम लेफ्ट विद ओनली ऑप्शन नंबर 1, as easy as that. So guys, this is how you need to solve the passage चाहे कितना हार्ड आ जाए, कितना इजी आ जाए, आपको एक तो रीडिंग पे ध्यान देना है। रीडिंग पे डाइवर्स रीडिंग के बारे में मैं आने वाले लेक्चर्स के अंदर बात करूंगा, मैं मेरे आने वाले फैंटास्टिक फ्राइडे के अंदर बात करूंगा, बट आपसे अभी सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि इस तरीके से पैसेज सॉल्व किया जाता है। विद